नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और एफआरआई यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में पीएचडी एडमिशंस के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो गई है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 4th of August. So without wasting any time, let's look at the details. So this is the official website of FRI, but before that, if you are new to my channel, please do subscribe. And if you like this video, please share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina. And check out the description box for the preparation of UGC NET and other competitive exams in environmental science. So here is the important notice, announcement and application form for PhD program. यहाँ पर है ये, और हम सीधे जाएंगे पेज नंबर 3 पर। यहाँ the Forest Research Institute, deemed to be university, is inviting applications from UGC NET, UGC CSIR NET, GATE, SEED, and similar national level test candidates for enrollment in PhD program in Forestry 2023. The candidates who are interested for registration as research scholar for the PhD degree in Forestry in Forest Research Institute, deemed to be University Dehradun, for the term of March 2024, are advised to apply in prescribed form latest by 4/8/2023 with a fee of rupees 1500 through bank draft in favor of registrar FRI deemed to be University Dehradun. The research center wise position of seats is shown on the website of FRI deemed to be University. तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. The seats to reserved categories have been earmarked as per the clause 532 of the PhD ordinance. Out of the published seats, 3% seats are reserved for the persons with disabilities. For eligibility, please see clause 3 of the PhD ordinance available on the website. 6 months pre-PhD compulsory course would be conducted only once tentatively from the month of November-December 2023. No application form will be entertained after the prescribed date. The last date for submission of application is 4/8/2023. मतलब PhD होगा और नवंबर-दिसंबर से कोर्स वर्क शुरू हो जाएगा 6 महीने का. The prescribed form may be downloaded from the website. Candidates without any fellowship as mentioned above need not apply. तो अगर आपको UGC या CSIR की कोई JRF या कोई नेट नहीं है तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. डेट ऑफ इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 5 जुलाई से एप्लीकेशन फॉर्म आउट है. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 4 अगस्त तक आपको करना है. नेम ऑफ रिसर्च सेंटर अरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में, और डिसिप्लिन वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट्स है फॉरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स 1, और कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ सीट्स है 1 अनरिजर्व. फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी 3 सीट्स, 2 अनरिजर्व, 1 ओबीसी. फॉरेस्ट बॉटनी 1 सीट, 1 एंड दैट इज अनरिजर्व. फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट्स के बारे में, उसमें 2 सीट है, 1 अनरिजर्व, 1 शेड्यूल कास्ट. फॉरेस्ट पैथोलॉजी 2 सीट है, 1 ओबीसी और 1 अनरिजर्व. सेंटर पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी 2 सीट्स, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 1 अनरिजर्व. तो आप देख सकते हैं कि पीएचडी में सीट्स कितनी कम होती हैं. तो अगर किसी का पीएचडी में एडमिशन हो जाए तो उसको बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, उसने बहुत कंपटीशन क्रैक किया होगा. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स 7 सीट्स, 2 ओबीसी, 3 अनरिजर्व, 1 शेड्यूल ट्राइब और 1 शेड्यूल कास्ट. कंजर्वेशन सोशल साइंस 1 सीट, FRCER प्रयागराज में है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, और 1 ओबीसी के लिए है ये. फॉरेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स 1 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है. फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी 3 सीट्स, 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 1 अनरिजर्व एंड 1 ओबीसी. फॉरेस्ट बॉटनी 1 and 1 unreserved, that is unreserved. Forest ecology and environment 2 seats, FRI 1 unreserved, FRCER प्रयागराज 1 ओबीसी के लिए है. फॉरेस्ट entomology 1 seat शेड्यूल कास्ट. फॉरेस्ट जेनेटिक्स 1 seat शेड्यूल ट्राइब. फॉरेस्ट पैथोलॉजी 2 seats, 1 unreserved and 1 ओबीसी. Non-wood forestry products 1 seat, and that is for economically weaker section. Again, silviculture 1 seat, 1 unreserved. Soil science 2 seats, 2 unreserved, 1 OBC. Wood science and technology 1 scheduled caste. Again, GV Pant Institute of Himalayan Environment and Development Almora. Chemistry of forest products 1 seat. Climate change and forest influence 1 unreserved and 1 OBC 2 seats. Environment management 3 seats, 1 unreserved, 1 scheduled tribe and 1 scheduled caste. Forest biotechnology 5 seats, 2 unreserved, 2 OBC, 1 economically weaker section. तो हम देख सकते हैं कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स का जो
पीएचडी में फिल एप्लीकेशन है वो इसी एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जाने वाला है, इसलिए शायद एप्लीकेशन फॉर्म भी महंगा है, क्योंकि उसी एंट्रेंस को आप क्लियर करेंगे तो आपको सीट मिलेगी जहां जहां आपकी रैंक होगी और जहां आपका सब्जेक्ट होगा। फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी 2 अनरिजर्व 2 ओबीसी 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फॉरेस्ट बॉटनी 2 अनरिजर्व 1 ओबीसी 1 शेड्यूल कास्ट और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 7 सीट्स 3 अनरिजर्व 2 ओबीसी 1 शेड्यूल कास्ट एंड 1 शेड्यूल ट्राइब। फॉरेस्ट जेनेटिक्स 1 अनरिजर्व सीट। फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी 1 ओबीसी non-wood forest products 1 schedule caste. Soil science 1 economically weaker section. Himalayan Forest Research Institute forest genetics 2 1 unreserved 1 OBC. Forest pathology 2 unreserved. Indian Institute of Forest Management भोपाल, ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए। क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस 1 सीट एंड दैट इज फॉर ओबीसी। कंजर्वेशन सॉइल साइंस 1 शेड्यूल कास्ट 1 शेड्यूल ट्राइब एंड 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। Environment management 2 seats 1 unreserved and 1 OBC. Forest ecology and environment 1 unreserved. Forest geoinformatics 1 schedule caste. Forest extension 1 OBC. Pulp and paper technology 1 unreserved. और ऐसे बहुत सारे और इंस्टीट्यूट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है रिमोट सेंसिंग की पढ़ाई के लिए। और यहाँ फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में एक सीट है पीएचडी के लिए और वो अनरिजर्व है। फॉरेस्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 2 सीट है, एक अनरिजर्व है और एक ओबीसी के लिए है। फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी में एक सीट है और वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद में उसका भी रिक्रूट उसमें भी एनरोलमेंट इसी एग्जाम के तहत होगा। तो फॉरेस्ट पैथोलॉजी में एक सीट है 1 शेड्यूल कास्ट के लिए और नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट में 2 सीट है, एक ओबीसी है और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। और सॉइल साइंस में एक सीट है और वो अनरिजर्व है। इन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर साउथ इंडिया फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट 3 अनरिजर्व 2 ओबीसी 1 शेड्यूल कास्ट और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरमेंट में 1 सीट दैट इज अनरिजर्व। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में 6 सीट्स 1 अनरिजर्व 2 ओबीसी 1 शेड्यूल कास्ट 1 शेड्यूल ट्राइब एंड 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी रांची, रांची में भी इसी के थ्रू होगा। फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी 2 सीट्स 1 ओबीसी 1 शेड्यूल कास्ट। फॉरेस्ट जेनेटिक्स 5 सीट्स 4 अनरिजर्व्ड गुड 1 ओबीसी। फॉरेस्ट जे इन्फॉर्मेटिक्स 2 सीट्स 1 अनरिजर्व्ड एंड 1 शेड्यूल कास्ट। और सिल्वीकल्चर में एक सीट है और वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। फिर है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर, बहुत लोगों को बैंगलोर में रहने का भी शौक होता है। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 3 सीट है 1 अनरिजर्व्ड 1 ओबीसी और 1 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में एक सीट है और वो ओबीसी है। फॉरेस्ट जेनेटिक्स में 2 सीट है, वो अनरिजर्व्ड है और शेड्यूल कास्ट के लिए है एक। फॉरेस्ट पैथोलॉजी में 2 सीट है, एक अनरिजर्व्ड और एक ओबीसी के लिए। सिल्वीकल्चर में 2 सीट है 2 और दोनों अनरिजर्व्ड है, अच्छा है। वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 13 सीट्स है 4 अनरिजर्व्ड 4 ओबीसी 2 शेड्यूल कास्ट 1 शेड्यूल ट्राइब और 2 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पीची में केरला में है ये। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 1 सीट है और वो अनरिजर्व्ड है। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी 1 सीट है और वो अनरिजर्व्ड है। सॉइल साइंस 1 सीट है और वो ओबीसी के लिए है। वाइल्ड लाइफ साइंस 1 सीट है और वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहाट, ये फॉरेस्ट बॉटनी में 2 सीट है यहाँ पर और एक अनरिजर्व्ड और एक शेड्यूल ट्राइब। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में एक सीट और वो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी में एक सीट वो अनरिजर्व्ड है। फॉरेस्ट जेनेटिक्स में एक सीट वो शेड्यूल कास्ट के लिए। फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी में एक सीट वो ओबीसी के लिए। फॉरेस्ट पैथोलॉजी में 6 सीट वो RFRA के लिए 01 RFRA 01 FRC BR आइजवाल ये नॉर्थ ईस्ट में है, 5 सीट है वहां पर, उसमें 3 अनरिजर्व्ड एक ओबीसी और एक शेड्यूल कास्ट है। और जो RFRA में सीट है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। फॉरेस्ट सीड टेक्नोलॉजी 1 सीट और वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। प्लांट फिजियोलॉजी 1 सीट और वो ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, जबलपुर भी बहुत खूबसूरत जगह है। शहर तो छोटा सा है लेकिन वहाँ पे संगमरमर के पहाड़ और नर्मदा नदी बहुत खूबसूरत लगती है। केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स एक सीट है और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी 2 सीट है, एक अनरिजर्व्ड एक ओबीसी के लिए। फॉरेस्ट जेनेटिक्स 3 सीट है, 2 अनरिजर्व्ड और एक शेड्यूल कास्ट है। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है एक ओबीसी के लिए। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एक अनरिजर्व्ड है। फॉरेस्ट बॉटनी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चंद्रबानी देहरादून में है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए एक सीट है वो अनरिजर्व्ड है। फॉरेस्ट बॉटनी में एक सीट है अनरिजर्व्ड है।
वाइल्ड लाइफ साइंस में 2 सीट है, एक अनरिजर्व और एक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। ये नोट है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं सारा पढ़ूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ नोडल ऑफिसर्स एंड रिसर्च सेंटर्स फॉर विच सीट्स आर पब्लिश्ड। तो जहां जहां की सीटें हैं वहां के नोडल ऑफिसर्स को कांटेक्ट करने के लिए उनका नेम और एड्रेस दिया हुआ है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस तरह से आपको कैंडिडेट का नेम, इसका आई गिव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड दिस होल थिंग एंड सी इफ यू क्वालिफाई और नॉट, एंड देन फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। और अब इसके रूल्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, द फॉलोइंग आर एलिजिबल टू सीक एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से और तभी अप्लाई कीजिए, क्योंकि 1500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा था, आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु मीट द रिक्वायरमेंट मेंशन्ड अबव मे सेलेक्ट अ फील्ड ऑफ स्टडी आउट ऑफ डिसिप्लिन्स गिवन बिलो टू परस्यू पीएचडी टू बी अवॉर्डेड इन फॉरेस्ट्री ओनली। तो पीएचडी की डिग्री आपको फॉरेस्ट्री में ही मिलेगी, लेकिन इनमें से कोई एक डिसिप्लिन में आप पीएचडी, मतलब फील्ड ऑफ स्टडी में आप पीएचडी कर सकते हो। सिल्वीकल्चर है और उसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर या बॉटनी में। ऐसे ही फॉरेस्ट सीड टेक्नोलॉजी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है। फॉरेस्ट जेनेटिक्स के लिए दी हुई है, फॉरेस्ट बॉटनी के लिए, फॉरेस्ट पैथोलॉजी है, फॉरेस्ट इंटेमोलॉजी है। तो इन फील्ड्स में आपको अगर पीएचडी करनी है तो आपको किस किस फील्ड का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ लिखा है। सॉइल साइंस है, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट है, इसके लिए मास्टर्स डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज और लाइफ साइंस और एनवायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री और मरीन बायोलॉजी और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एक्वेटिक बायोलॉजी, इनमें से कोई भी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इकोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन अबव मास्टर्स डिग्री कोर्सेज। और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में आप मास्टर्स हो सकते हैं। तो फॉरेस्ट इकोलॉजी एनवायरमेंट में आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन डिग्री तो आपको फॉरेस्ट्री की ही मिलेगी। पर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करें, आपने इकोलॉजी एक पेपर पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है, पेपर एंड बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन, न्यू वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और इन सब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो लिखी हुई है। एनवायरमेंट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ साइंस, एनवायरमेंट मैनेजमेंट के लिए देख लेते हैं, मास्टर्स डिग्री एनवायरमेंट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल साइंस और एमटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर ये आपके पास है तो आपको एनवायरमेंट मैनेजमेंट की फील्ड में पीएचडी मिल जाएगी। फिर वाइल्ड लाइफ साइंस है, फॉरेस्ट जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्लाइमेट चेंज इन फॉरेस्ट्री, कंजर्वेशन सोशल साइंस, ये भी अच्छा है। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम शैल बी मिनिमम ऑफ 3 years, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 years, a maximum of additional 2 years can be given। तो 3 से 6 साल में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 2 साल और एक्सटेंड होगा। तो 8 साल में पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई तो फिर नहीं हुई, ठीक है। अकॉर्डिंगली इन केस अ रिसर्च स्कॉलर डज नॉट सबमिट, रिसर्च स्कॉलर उनको कहते हैं जो पीएचडी कर रहे होते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर डज नॉट सबमिट हिज और हर थीसिस विदिन 6 calendar years from the date of admission unless the term is extended by the research degree committee on the recommendation of the research advisory committee for a period of 1 calendar year, his or her registration shall lapse। तो 6 साल के अंदर अगर आपने पीएचडी जमा नहीं की और आपको जो एक्सटेंशन मिलने वाला था वो भी नहीं मिला तो आपकी पीएचडी खत्म, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या होगा, वीडियो को पॉज करके ये भी ध्यान से देख लीजिए। On entrance test basis followed by, give the link in the description box. Please go through all the details. The registration letter for the PhD degree will be issued only after the receipt of prescribed fee to the FRI university। और जब तक फीस नहीं भरेंगे तब तक रजिस्ट्रेशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी इशू नहीं करेगी, मतलब तब तक आप स्टूडेंट नहीं है। तो सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, फीस भी भरना है। फी स्ट्रक्चर, फी टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिपोर्टिंग, कंपल्सरी कोर्स फी 8000, लाइब्रेरी फी 4000, कॉशन मनी 5000। कॉशन मनी तो कभी रिफंड होती भी है कभी नहीं भी होती। तो 8 4 12 12 5 17, माय गॉड, हमने तो पीएचडी में इतनी फीस नहीं दी थी, पर अब तो महंगाई है। बाकी और फीस है, रजिस्ट्रेशन और स्नॉप्सिस के टाइम पर कितनी देनी है, 22,000 है। रजिस्ट्रेशन फी, एनरोलमेंट फी 22,000 है, माय गॉड। अदर फी, अच्छी खासी फीस भरनी है पीएचडी के लिए। पार्ट टाइम मोड में भी पीएचडी है। इसके अलावा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ये इसको डाउनलोड कीजिएगा और ये भर के और इसको फॉर्म के साथ लगाइएगा। इसके अलावा अगर आप ओबीसी हैं तो इस फॉर्म को भर के और इसको अपने फॉर्म के साथ लगाइएगा, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। प्लीज चेक द एलिजिबिलिटी एंड प्लीज डू अप्लाई बिकॉज FRI is one of the leading institute in India for a PhD in any of the subjects that was mentioned in the
एडवर्टाइजमेंट। तो FRI बहुत ही अच्छी जगह है PhD करने के लिए, रिसर्च बहुत उम्दा होती है, उसकी डिग्री की बहुत वैल्यू है हर जगह। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।